So, all of you guys, wish you a very happy good evening to each and every one person. And I hope all of you guys will be enjoying yourself right now, as usual. But unfortunately, that matter was not comfortable on me. But actually, unfortunately the reason of the getting happy and very much comfortable was not suited on me perfectly right now, because 2 days ago I will face a biggest tragedy at my own, a biggest tragedy and a heartbroken type of incident at my own residence, because of my so-called elder brother, Mr. Shashi Shekhar Singh. Actually, it's Setu Bhaiya. Because of his own crime and his own misdeeds and his all negativity, because he was the main source. He was the fully source of the negativity, from the ground floor to the top floor, in his whole physique, in his whole blood. In the actual reason, I would like to say only one thing about him, because when he was come in the COVID time in year 2020, then I thought that he's my elder brother, so I have to give him respect or preference, because he's elder than me. But in the actual reason, that was my gravest mistake, that was my gravest crime, so I will did it. I have no idea, don't know anything about it, that he was truly a biggest type of criminal of this world right now. At the 2nd July in the morning time at 9:50 a.m. when I will be getting ready for my office work, then he will suddenly come out. Then he will suddenly cross his lines. On that the day, I realized that he was not a human being. And now I guess that so many people can't understand my. So many people of you can't understand my English language right now. So now it's the time that I have to transform myself. It's the time of the transformation of my language right now. So actually परसों के दिन की ही बात है, जब मैं नहा होकर के रेडी हुआ और मैं ये सोच रहा था कि अब जल्दी से ब्रेकफास्ट करके मैं ऑफिस निकलूंगा, तो ये सडनली ये लड़का आकर के, तो उस वक्त पापा ने मेरे से पूछ दिया कि तुमको देर क्यों हो रही है. तब मैंने भी बोल दिया कि हाँ, मुझे लेट इसलिए हो गया क्योंकि सेतु भैया वॉशरूम चला गया था, अब उसके आने तक का मुझे वेट करना पड़ा. और उसी बात पर इसने मुझे दुनिया भर की बातें सुनाई, मुझे गंदी गंदी गालियाँ देने लगा. इतने से भी उसका मन नहीं भरा, तो इसने मुझे धक्का मार दिया, इनफैक्ट गला रेतने लगा. और ये उसने गला रेतने लग गया वो मेरा, इनफैक्ट एंड दैट्स नॉट इनफ फॉर हिम, दैट्स नॉट इनफ फॉर हिम राइट नाउ. And he suddenly told to me that I will kill you in the front of my he will told to me that he will kill me very much badly in the front of my mom and dad, and no one can do anything in the matter of my protection. मुझसे ये कहने लगा कि तुम्हारे मॉम डैड के सामने तुम्हारा मर्डर कर दूंगा और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि अगर वो मेरे मॉम डैड के सामने अगर वो मेरी फिनिशिंग कर देगा, मुझे फिनिश कर देगा, गला रेत देगा, तो लोग खुश हो जाएंगे, लोग खुशी से क्लैपिंग करेंगे, उसको तालियां बजा के अवार्ड देंगे. यही देख के तो हैरानी होती है कि जो इंसान सर से लेके पैर तक ट्रूली नेगेटिविटी का फुली सोर्स हो, जो एकदम अपने ईगो में ही डूबा हुआ हो, उससे साधारण बोध की अपेक्षा रखी ही नहीं जा सकती. इनफैक्ट इसकी नेगेटिविटी और थिंकिंग एबिलिटी को देख करके एक बात तो समझ में आती है कि जिस वक्त दुर्योधन जब पानी में गिरा था, तब द्रौपदी ने ऊंची आवाज़ में हंसते हुए कहा था, लाइक फादर लाइक सन, यथा पिता तथा पुत्र, कि पप्पा भी अंधा और बेटा भी अंधा. बट इसको मैं क्या बोलूँ समझ में नहीं आता. लेकिन एक बात तय है कि ये तो बोलना ही पड़ेगा कि ही इज़ truly a detestable, disgusting, blemished, gluton, idiotic, spineless bastard, and A to Z each and everyone tag that was totally suits on that boy. He was truly a wicked man and a disgusting type of person. And now it's the time that I have to reveal the each and every one word meaning that I will told in the English language against him. The meaning of disgusting is वाहियात. The meaning of the detestable is निकृष्ट, निम्न, घृणित स्तर का इंसान. And the meaning of gluton is in the Hindi language is called petu, bhukkar, chatora. And that's not enough for him. Actually,
मन कर रहा है दुनिया के जितने भी इंसल्टिंग वर्ड्स हैं सारे उसको दे डालूं, क्योंकि सारे ही उस पर सूट करते हैं। फैक्ट समझ में ये नहीं आता है, कोविड टाइम से लेकर के अभी तक में मैंने उसकी इतनी ज़्यादा हेल्प की, उसको A to Z हर वक्त सपोर्ट दिया, फिजिकली भी दिया, इकोनॉमिकली भी दिया। मेरे स्कूटी पर जहाँ मैं उसको चढ़ने, किसी का हाथ लगाना भी मुझे मंजूर नहीं होता था, मेरा स्कूटी वो ऑपरेट कर रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज कहना पड़ेगा कि वो किसी भी हेल्प के योग्य नहीं है, किसी वरदान के योग्य नहीं है वो। इनफैक्ट ऐसा लगता है जैसे जिसको मैं बून समझने की गलती कर रहा था ना, वो बून नहीं है, ही वॉज ट्रूली अ हार्टफुल कर्स फॉर ईच एंड एवरी वन। क्राइम तो मुझसे हुआ ही है, गलती मैंने ही की है जो मैंने उसको इम्पोर्टेंस दिया, अपने घर में जगह दिया, जब जो बोला वो करता गया आज्ञाकारिता से, ये सोच करके कि हाँ बड़ा भाई है चलो कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज ये बोलना पड़ रहा है कि वो किसी भी हेल्प के योग्य नहीं है, वो किसी की दया और पात्रता के योग्य है ही नहीं। क्योंकि अगर वो इसमें कोई योग्यता होती तो ऑब्वियसली लोग उसको पूछते। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे लोगों को हेल्प किया है, घर के बहुत से बंदों को हेल्प किया है, आउटसाइडर स्ट्रेंजर्स को भी हेल्प किया है, लेकिन आज तक किसी की मजाल नहीं किसी ने उंगली उठाई हो। बट इनफैक्ट इसके मामले में तो समझ में नहीं आता है कि इसको अपने प्लेट से फूड शेयर किया, जब बोला तब इसको कॉफ़ी बना के दिया, जब बोला तब चाय बना कर दिया, यहाँ ले चलो वहाँ ले चलो, स्कूटी से ये करो वो करो। समझ में नहीं आता है कि आखिर समझता क्या है ये दूसरे इंसानों को। इनफैक्ट मिनी स्कर्ट पहनकर जो लड़कियां बार में डांस करती हैं, जिन लोगों को, जो गर्ल्स अक्सर इंसानों की कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वाइफ बन जाती हैं, जो लड़कियां, इनफैक्ट बहुत गंदे लैंग्वेज में लोग गर्ल्स को वैसे बोलते हैं कि जो लड़कियां जो बार में मिनी स्कर्ट पहन के डांस करती हैं, जो किसी की रखैल तक बनने को राज़ी हो जाती हैं, तो उसको भी इंपॉर्टेंस मिलती है। पर इसके नज़र में मेरी इंपॉर्टेंस क्या है समझ में नहीं आता मुझे। इनफैक्ट एक किसी हरे भरे पेड़ को अगर आग लगाई जाए तो उससे लिपटा हुआ क्रीपर भी उसके साथ जल के ख़त्म होता है, पर मेरी स्थिति शायद उस क्रीपर से भी निम्न हो गई है। पास्ट टाइम की बातें अगर गिनाना शुरू करो तो युग बीत जाएगा, उसके लिए तो टाइम भी नहीं है। लेकिन इतना तो तय है कि ये किसी की भी दया और उदारता के योग्य नहीं है। And now it's the time of my final decision against him. और मेरा final, and that's my final decision right now, that and that's my final decision, that I have to take in the strict action and step against him. And my strict action and my strict step is that final right now, that now he was truly a deathful person for me right now. यानी अब वो यूनिवर्स में रहे या ना रहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो मेरे लिए मृत समान हो चुका है, मृत प्राय हो गया है। और कहते भी हैं ना कि जो मृत्यु शैया पर हो उससे बात नहीं करनी चाहिए। अब समाज में रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरा डिसीजन फुल एंड फाइनल है कि अब वो एक मृत्यु शैया वाले इंसान के अलावा और कुछ नहीं है मेरे नज़र में, क्योंकि उसका होना नहीं होना मेरे लिए अहमियत ही नहीं रखेगा। क्योंकि जब तक मैंने उसको इम्पोर्टेंस दिया उसने उस इम्पोर्टेंस की कदर नहीं की, लेकिन अब इम्पोर्टेंस देकर के फ़ायदा ही क्या होने वाला है, क्योंकि सब कुछ तो उसने डिस्ट्रॉय ही कर डाला है। इतना इम्पोर्टेंस पाकर, इतनी जगह पाकर, इतना रिस्पेक्ट पाकर भी उसको क्या मिला। इनफैक्ट मैंने ही इतना सब लोगों को हेल्प किया हुआ है, लेकिन आज तक किसी की मजाल नहीं है कि किसी ने मेरे ऊपर उंगली उठाई हो। लेकिन ये तो इनफैक्ट ऐसा डिटेस्टेबल है कि क्या बोलूँ, ये जिस प्लेट में खाता है उसी में छेद कर देता है। इनफैक्ट कभी कभी तो ऐसा सोचता हूँ ना कि अच्छा तो ये होता कि ये किसी क्रोकोडाइल का फूड बन गया होता। वाई नॉट एनीवन क्रोकोडाइल और एनीवन रसेल वाइपर विल बी फिनिश्ड हिम राइट नाउ। और अगर मेरे लिए पॉसिबल होता तो मैं खुद अपने आप को ब्लैक मामा में ट्रांसफॉर्म करके उसका दी एंड करता। और छोड़िए, इतना डाउन रेपुटेशन नहीं है, अब बस अपने हार्डेस्ट वेपन का ही यूज़ करना पड़ेगा जो आज तक इससे पहले किया हुआ है। और यही मेरा फाइनल डिसीजन भी है। अब मैं उससे कोई बातचीत तो करने वाला नहीं है, ना ही कोई अपेक्षा रखने वाला हूँ, लेकिन मेरा डिसीजन ये फुल एंड फाइनल है कि अब मैं सिर्फ उसको अवॉइड ही कर सकता हूँ। यही अनाउंसमेंट मुझको करनी थी। And now the work was going to be completed successfully right now, and now I have to get and log out. So each and everyone, please take care about yourself, and please, it's my request to all of you near and dear peoples, that given respect and taken respect to that person, only on that person who will given preference and respect to you, not to that person who will always use you for his own greed and selfishness or his own swarth siddhi, because he was truly a selfish boy of this universe. Take care and bye.